हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम जोलॉजी। स्टूडेंट्स, फिर से हम एक नई सीरीज लेकर के आ गए प्रोटोजोआ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और ये सीरीज लाने में काफी डिले हो गई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए स्टूडेंट्स अब हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि जितने भी बच्चे मुंगेर यूनिवर्सिटी में हैं और जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं उनकी एग्जाम्स होंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वो न्यूज़पेपर कटिंग भी डाल दी है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपकी जो एग्जाम है इस न्यूज से बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की एग्जाम डेफिनेटली होगी। अभी तक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि इनकी एग्जाम शायद कैंसिल हो जाए या फिर नहीं होगी एग्जाम या काफी डिले होगी। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूज के बाद अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी एग्जाम होंगी ही, तो आप अपनी प्रेपरेशंस को फिर से स्टार्ट कर लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम की डेट पता नहीं होती है और वो अपने प्रेपरेशंस को भी बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिर से आप अपने सारे प्रेपरेशंस को करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओके। और मैं कोशिश करूंगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो हम वीडियो सीरीज ये स्टार्ट कर चुके हैं, वीकली आपको 2-3 वीडियोस प्रोवाइड हो जाए, okay. So students, let's start. Students, question number 1 is the subphylum Plasmodroma of phylum Protozoa has. Option number 1 is cilia for locomotion. Option 2 is cilia and pseudopodia for locomotion. Option number 4 is flagella and pseudopodia for locomotion. What will be the correct answer? Correct answer is flagella for pseudopodia for locomotion. Okay. Question number 2. Dysentery is caused by. Number 1 is Leishmania. Number 2 is Entamoeba histolytica. Number 3 is Plasmodium. What will be the correct answer? So correct answer is Entamoeba histolytica. Option number 2. Okay. Number 3, question number 3 is Paramecium is a dash animal. Number 1 is saprozoic, number 2 is holozoic, number 3 is holophytic. What will be the correct answer, students? Holozoic. Holozoic is the correct answer. That is option number 2. Okay. Question number 4. Question number 4 is Kala-Azar means leishmaniasis is caused by. तो लेशमैनियासिस किससे होता है ये स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही इजी है। ये सभी आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इलिफिडियम इज अ डैश एनिमल. ऑप्शन नंबर 1 इज सैप्रोजोइक, ऑप्शन नंबर 2 इज होलोजोइक, ऑप्शन नंबर 3 इज होलोफाइटिक. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? होलोजोइक. Holozoic. Okay. Option number 2 is correct. Question number 6 is Entamoeba histolytica is found in man in. Number 1 is colon. Number 2 is oral cavity. Number 3 is stomach. Okay. What will be the correct answer? Number 1. Option number 1 is the correct answer. Colon. Okay. Question number 7. Which one of the following protozoans is responsible for Kala-Azar? Again, so students, what would be the correct answer? ये सभी को मालूम होना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8. Contractile vacuole in protozoa amoeba is responsible for. Option number 1 is ingestion. Option number 2 is digestion. Option number 3 is osmoregulation. What will be the correct answer? Osmoregulation. Okay. Osmoregulation. Option number 3 is the correct answer. Okay. Question number 9. Next question is asexual reproduction is common occurrence in protozoa because majority of
Protozoans are parasites. Sexes have not been differentiated. And option number third is it helps to multiply rapidly. What will be the correct answer, students? It helps to multiply rapidly. Okay. Next question is transmission of Leishmania donovani occurs by. Number one is bite of mosquito. Number two is bite of sandfly. And option number third is cyst. So what will be the correct answer? Bite of sandfly. Okay. Next question is in paramecium, the movement of food vacuoles in the endoplasm is known as. Option number one is amoeboid movement. Option two is flagellar movement. Option third is cyclosis. What would be the correct answer? Cyclosis. Okay, cyclosis is the correct answer. Trichocyst is found in. Number one is amoeba. Number two is paramecium. And number third is euglena. What is the correct answer? Paramecium. Paramecium is the correct answer. Okay. Next question is contractile vacuole is absent in amoeba, paramecium, Entamoeba histolytica. What is the correct answer? E. histolytica. Okay, Entamoeba histolytica is the correct answer. Amoeba belongs to class. Amoeba कौन से क्लास से बिलोंग करता है? देखो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते एग्जाम में. ओके, तो आपको बहुत जरूरी है कि जितने भी आप क्वेश्चंस को पढ़ो इनके सिस्टमैटिक पोजीशन को याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आपको टर्न करके पूछे जा सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन इज अमीबा बिलोंग्स टू क्लास. कौन से क्लास से अमीबा बिलोंग करता है? नंबर वन इज राइजोपोडा, नंबर टू इज ज़ूमास्टिगोपोडा, नंबर थर्ड इज माइक्सोस्पोरिडिया. So what is the correct answer? Rhizopoda. Rhizopoda is the correct answer. Okay. Amoeba का क्लास क्या होता है? Rhizopoda. Okay. Next question is tongue-like projection of the body of amoeba is known as. Number one is rhizopodium. Number two is exopodium. Number third is lobopodium. देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. What is the correct answer? Number third. Lobopodium is the correct answer. Okay. Next question is metacystic development is found in Paramecium chordatum, Leishmania donovani, and E. histolytica. What is the correct answer? Entamoeba histolytica. Again, it's very important question. Trichocysts are found in. Trichocyst किसमें मिलते हैं हमें? तो नंबर वन इज साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम, न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, इंफ्रासिलियरी सिस्टम ऑफ पैरामीशियम. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय. ऑप्शन वन इज पॉलीस्ट्रोमेला, नंबर टू इज लेishmania, नंबर थर्ड इज पैरामीशियम. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पॉलीस्ट्रोमेला इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं वो अपने स्कोर भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, और इट्स जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन. ओके, तो आप इसे क्विक रिवीजन खाली टाइम में आप बिल्कुल आप देख सकते हो. आपका एक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अलग से प्रेपरेशन हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिकुलोपोडिया इज फाउंड इन. नंबर वन इज पॉलीस्ट्रोमेला, नंबर टू इज साइकॉन, number third is paramecium. What is the correct answer? Polystromela is the correct answer. Okay, reticulopodia किसमें पाए जाते हैं? Polystromela में. Okay, ये भी बहुत important question है. Okay, next question is tetranucleate cyst is found in paramecium, Entamoeba histolytica and Polystromela. What is the correct answer? Option number two, that is Entamoeba histolytica. Okay.
Next question is rectal process are found in. Number one is paramecium, number two is elyphidium, number third is ephilota. Okay, what is correct answer? ऑप्शन नंबर वन पैरामीशियम. पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा रेट्रल प्रोसेस, तो आप याद रखना कि रेट्रल प्रोसेस हमेशा पैरामीशियम में ही मौजूद होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास. नंबर वन इज स्पोरोजोआ, नंबर टू इज सीलियोफोरा एंड नंबर थर्ड इज मस्टिकोफोरा. तो कौन से क्लास में मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस ये दो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये सीलियोफोरा में मौजूद होते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक किस में पाए जाते हैं? सीलियोफोरा में. ओके, सो नंबर टू ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सीलियोफोरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्टिव स्टेज इज. नंबर वन इज मोनोन्यूक्लिएट, नंबर टू इज डाइन्यूक्लिएट, नंबर थर्ड इज टेट्रान्यूक्लिएट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका का. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, टेट्रान्यूक्लिएट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामीशियम बिलोंग्स टू होलोट्राइका, पेरिट्राइका और स्पाइरोट्राइका. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज होलोट्राइका. ओके, देखो अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन सिस्टमैटिक पोजीशन से अराइज किया गया है. ओके, सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जितने भी आपने ऑर्गेनिजम्स को पढ़े हैं इनके सिस्टमैटिक पोजीशंस को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अगर प्रोटोजोआ से पूछे जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिस्टमैटिक पोजीशन को याद रखें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सिस्टमैटिक पोजीशन से ही अराइज होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो किन ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है? नंबर वन ऑप्शन इज इंटमीबा, नंबर टू इज ट्रिपैनोसोमा, नंबर थर्ड इज ऑल ऑफ दीज. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. ओके, दोनों में इंटमीबा, हिस्टोलाइटिका और ट्रिपैनोसोमा दोनों में ही पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, next question is the locomotor organelles of Foraminifera are. Number one is Lobopodia, number two is Philopodia, number third is Reticulopodia. What is the correct answer? Reticulopodia. Reticulopodia is the correct answer. It is also very important question. Next question is the cell of polystromella is made up of. This is also very important question, students. So number one is calcium carbonate, number two is silicon, number third is chitin. What is the correct answer? Calcium carbonate. Calcium carbonate is the correct answer. Okay. Next question is the spindle shaped form of Leishmania that has anteriorly placed gynoblast is called leptomonad form. Option 2 is trypanosoma form. ऑप्शन नंबर थर्ड इज लेशमानिया फॉर्म. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये सभी को पता होनी चाहिए. सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, लेप्टोमोनाड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड विद सीलिया दैट आर अरेंज्ड इन. ऑप्शन वन इज हॉरिजॉन्टल रो, ऑप्शन नंबर टू इज लॉन्गिट्यूडनल रोज, ऑप्शन थर्ड इज ट्रांसवर्स रोज. What is the correct answer? Horizontal row. Okay? किस तरह से पैरामीशियम की बॉडी सीलिया से कवर होती है और ये सीलिया किस तरह से अरेंज होते हैं? तो ये हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज होते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि हमारी
एग्जाम स्पेशल सीरीज चल रही है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने लास्ट मिनट के प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बना सकते हो। जिन बच्चों के पास एग्जाम्स की किस तरह से आप प्रिपरेशन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और सब्सिडरी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस हमने ये एक कोर्स बनाया है, और आप जिन भी बच्चों को लग रहा है कि उनकी प्रेपरेशंस और होनी चाहिए और बेहतर ढंग से होनी चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज द कोर्स, आप इसे परचेस करें। और इसकी प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में हम बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। सबसे पहले तो हो गया आपके ऑनर्स पेपर, दूसरा है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम फ्री में दे रहे हैं, जो बाकी बच्चों के लिए भी है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है यहाँ पे। आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स जो है, इन दोनों सब्सिडरी सब्जेक्ट्स की फुल प्रेपरेशंस आपको फ्री में मिल रही है। सो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड फॉर यू। जैसा कि आज आपको कंफर्मेशंस भी मिल चुकी है, तो बहुत कम टाइम बचा है, आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा करना है। हो सकता है इस एग्जाम में थोड़े टफ क्वेश्चंस आए, क्योंकि सारे आपके क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए काफी टाइम मिल गया था आपके प्रोफेसर्स को भी। तो आपको डेफिनेटली आपकी जो प्रेपरेशंस की जो लेवल है वो 1 लेवल अप होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको प्रेपरेशंस करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। और आज से आप अपनी प्रेपरेशंस को बिल्कुल स्टार्ट कर दें। जितने भी क्वेश्चंस आप इसे टाइम टू टाइम लिख के रिवीजन करें। ओके।